सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडाउत बंदन अणक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाह न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाह न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। दोयै भाए विगुचियै गल पई सो जम की फास। जेहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखियास। रैन विहाणी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साजी निवाजी परम सत्कार योग साध संगत जी। सतगुरु जी की अपार कृपा बख्शिश रहमत का सदका अज हाड़ का महीना आरंभ होया है। आप सरबत संगतां ने गुरु चरनां दे विच पहुँच करके हाज़रियां भरियां हन। आप जी बहुत वडभागे बने हो। गुरु चरनां दे विच हाज़रियां आप जी ने भरियां ने कि ये हाड़ दा महीना सुख आनंद दे नाल सतगुरु जी बतीत करवाउण। आओ साध संगत जी, जिवें धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज सतगुरु जी ये 12 माह की बाणी माझ राग दे विच सतगुरु जी ने उचारण कीती है। सतगुरु जी ने सानू कलयुगी जीवां नू उपदेश बख्शिश कीता है कि साडा जीवन सफला हो सके। आओ जिस तरह गुरु साहिब जी कृपा कर रहे ने, आओ गुरु दे चरनां विच जुड़दे हां। सतगुरु जी की कृपा सदका पावन पवित्र हाड़ दे महीने का उपदेश सरवण करिए ते अपने हिरदियां दे विच वसाइए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाहो न जिन्ना पास।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹੋ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਹੋ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ
अंदर साडे तपश चल रही है। कहंदे चंदन चंद ना सरद रुत, कहंदे ना चंद्रमा दीयां किरणां दे नाल ये अंदरली जिहड़ी तपश हिरदे दी तपश दूर होनी है, अते ना ही कहंदे चंदन दे रुख दे नाल अंदर दी जिहड़ी तपश ये दूर होनी है। इस करके कहंदे सर्दी दा जिहड़ा मौसम है इस दे नाल भी अंदरली जिहड़ी तपश दूर नहीं होनी। सर्दी दे मौसम दे विच असीं कहने कि साडे शरीर नूं ये तपश नहीं लगती, तपश दूर हो गई है, मौसम बहुत सुहावना है, मौसम बड़ा ठंडा है ते शरीर नूं सुख मिलदा है। पर भलिया जिहड़ी अंदर दी तपश है वो सर्दी दी रुत भी दूर नहीं कर सकती। जिहड़ी अंदर दी तपश है वो चंदन दे रुख दी लकड़ी भी दूर नहीं कर सकती। जिहड़ी अंदर दी तपश है वो चंद्रमा दीयां किरणां भी उसनूं दूर नहीं कर सकदियां। महाराज सतगुरु जी नूं पुछो कि गुरु साहिब जी जे चंदन दे रुख दी लकड़ी साडे अंदर नूं ठंडा नहीं कर सकदी, जे चंद्रमा दीयां किरणां साडे अंदर नूं ठंडियां नहीं कर सकदियां, जे सर्दी दा मौसम साडे अंदर नूं ठंडा नहीं कर सकदा ते साडे अंदर दी तपश नूं कौन दूर कर सकदा है? साडे अंदर नूं ठंड कौन पा सकदा है? साडे हिरदे दे विच शीतलताई किवें आ सकदी है? ते गुरु साहिब जी बचन करदे ने बाणी दे विच, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। कहंदे भाई जिहड़ा परमात्मा दा नाम है ना, ये साडे अंदर दे तपश नूं ये दूर करके अंदर साडे शीतलताई बख्श सकदा है। ये साडे अंदर ठंड वरता सकदा है। ये परमात्मा दा नाम, पर परमात्मा दा नाम साडे कोलों जपिया नहीं जाता, परमात्मा दा नाम साडे कोलों लिया नहीं जाता ते साडे हिरदे दे विच ठंड किवें पै जावे। भावें दुनिया दे कोल पैसा बहुत है, सुख दे साधन बहुत ने, हर काम असी दुनिया दे विच कर सकते हैं, पर साध संगत जी जिहड़ा अंदर दा सुख है वो किवें मिल सकता है? सारी दुनिया चिंता दे नाल तप रही है। महाराज बचन करते ने, चिंतत ही दिसै सब कोए, चेतै एक तई सुख होए। चिंता दे नाल दुनिया तप रही है, तपश दे विच है, हिरदे तप रहे ने, ते महाराज कहंदे उस परमात्मा नूं याद करो तां तुहानूं सुख मिलेगा। दुनिया दे विच वड्डे वड्डे धनाड़ करोड़पति सब दुखी हो रहे ने, उन्हां दे हिरदे तप रहे ने, इन्ने सुख दे साधन हुंदियां भी क्यों? क्योंकि परमात्मा दा नाम पल्ले नहीं है, परमात्मा दा नाम जपिया नहीं जाता। आखण औखा साचा नाओ, परमात्मा दा सच्चा नाम जिहड़ा जपना बहुत औखा है। ते महाराज बचन करते ने, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। जिन्हां ने परमात्मा दा नाम जपिया भाई, उन्हां दे हिरदे दे विच ठंड वरत जाती है, उन्हां दे अंदर दी तपश दूर हो जाती है, उन्हां दा हिरदय उन्हां दी अंदर दी अवस्था इवें दी हो जाती। महाराज बचन करते ने, जे सुख देह तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे धियाई, जे भुख देह तां इत ही राजा दुख विच सूख मनाई। क्योंकि अंदर तपश नहीं रह गई, अंदर ठंडा हो गया है। इस प्रकार साध संगत जी परमात्मा दे नाम दे नाल ही सतगुरु जी कृपा करते ने, भाई तेरा अंदर जिहड़ा ये शीतलताई हो सकदा आ। परमात्मा दे नाम तो बिना वड्डे तो वड्डे वो तपदे देखे ने, वो झूरदे देखे ने, वो दुखी देखे ने। सहस्कृति दे विच भी सतगुरु जी ने बचन कीते। महाराज बचन करते ने, न शीतलंग चंद्र देवै, न शीतलंग बावन चंदन है। कहंदे महाराज बचन करते ने, सतगुरु जी कहंदे ना ते चंद्रमा दीयां किरणां दे नाल तेरे अंदर नूं ठंड पैनी है, ते ना ही बावन चंदन दे नाल तेरे अंदर नूं ठंड मिल सकदी है। ते महाराज बचन करते ने, न शीतलंग शीत रतेण नानक शीतलंग साध स्वजन है। कहंदे ना सर्दी दे मौसम दे नाल तेरे अंदर नूं ठंड पैनी है, ये अंदर जिहड़ा हिरदा जिहड़ा तप रहा है ये भाई ये किवें ठीक होना? ते महाराज बचन करते ने सतगुरु जी, शीतलंग साध स्वजन है। कहंदे गुरु दे प्यारे जिहड़े है ना नाम जपण वाले, उन्हां दे हिरदे शीतल ने, उन्हां दी संगत विच बैठ के उन्हां दे नाल मिलिया
भाई तू भी शीतल हो सकदा है। तो साध संगत जी सतगुरु जी ने बड़ी किरपा की है बाणी दे विच। बाणी विच बचन आउंदे ने, हर का सिमरन जो करै सो सुखिया संसार। कहंदे जिसने परमात्मा वाहिगुरु का सिमरन किया, परमात्मा का नाम जपिया, उही दुनिया दे विच सुखी है, उसका हिरदा ही शीतल है। साध संगत जी आनंदपुर साहिब की धरती ते एक साधु आया है जिसका नाम है शीतल दास। उसने अपने शरीर के उपर सवाह मली हुई है। आनंदपुर साहिब गया तो हर रोज़ आनंदपुर साहिब गुरु के दरबार विच पहुँचता है, लंगर दे विचों प्रशादा पानी छकदा है। अते भाई सुथरा जी उन्होंने देखिया कि इन्हां दे शरीर के उपर सवाह मली हुई है, तो जिहड़ी सवाह वो अग दे नाल ही नज़र आउंदी है, जिथे किते अग बली होवे। ते उन्होंने देखिया कि अग किते नज़र नहीं आ रही, तो भाई सुथरा जी उन्होंने उस साधु नूं उंगल मार के वखी दे विच पुछया कि तुहाडा नाम की है। कहण लगा कि मेरा नाम शीतल दास है। तो कुछ मिनटां बाद भाई सुथरा जी ने फिर उंगल लाई है वखी दे विच, अते फिर पुछया कि तुहाडा नाम की है। उस साधु ने फिर थोड़ा जिहा औखा होके आख्या कि मेरा नाम शीतल दास है। तीजी वार फिर जदों भाई सुथरे ने आख्या कि तुहाडा नाम की है, तो हुण वो जिहड़ा साधु सी वो बहुत गुस्से दे विच आ गया कि बार बार मैनू तंग कर रहा। गुस्से दे विच आण के भाई सुथरे दे चपेड़ मार दिती। ते भाई सुथरा जी बड़े खुश होए, कहण लगे मैं देख रहा सी कि अग कित्थे है, हुण मैनू अग दा भी पता लग गया है। ये जिहड़ी सवाह ते नज़र आ रही अग नहीं सी नज़र आउंदी, हुण मैं तुहाडे अंदर अग वेख लई है, तुहाडे अंदर तपश वेख लई है। इस प्रकार साध संगत जी अंदर दी तपश, अंदर दी जिहड़ी अग है, वो परमात्मा वाहिगुरु दे नाम दे नाल ही दूर हुंदी है। सतगुरु जी ने बचन कीते आ, साड़ तपंदा तिस लगै, हर नाहो न जिन्ना पास। भाई ये हाड़ दा महीना, ये गर्मी दी रुत, उन्हां दे लई ये तपश पैदा हुंदी है हिरदे दे विच, जिन्हां दे हिरदे दे विच परमात्मा वाहिगुरु दा वासा नहीं है। भावें असीं जिन्ने मर्जी यतन कर लईए, इस तपश तो बचण दे लई शरीर नूं शीतलताई तां मिल सकदी है, पर अंदर हिरदे नूं शीतलताई नहीं मिल सकदी, जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा वाहिगुरु नहीं है। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। सतगुरु जी बचन करते ने भाई परमात्मा तो दूर हो के जो जग जीवन कहते जगत नूं जीवन देन वाला जो परमात्मा वाहिगुरु है, कहते उस परमात्मा नूं पुरख कहते परमात्मा वाहिगुरु नूं त्याग के छड्ड के मानस संधि आस। कहते मानस कहते एक मनुख दे उपर जिहड़ी आस रख लई है, आस रख लई है कि एक मनुख दे सिर ते मैं जीउंदा हाँ, फलाने बंदे दे सिर ते मैं चल रहा हाँ, मेरा घर का गुजारा चल रहा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे ने। परमात्मा नूं भुला ही दिता है, परमात्मा नूं छड्ड ही दिता है, एक मनुख दे उत्ते आस रख लई है। गुरु साहिब जी कहंदे, महाराज कहंदे भाई ये भी काम जिहड़ा चंगा नहीं है। परमात्मा वाहिगुरु ते अन्न खाना, कपड़ पहनण दिया, रस अन्न भोगाणी, जिन दिए सो चित न आवई, पशु हौ कर जानी। कहंदे जिस परमात्मा वाहिगुरु ने खाण वास्ते अन्न दिता आ, पहनण वास्ते वस्त्र दिते ने, रहण वास्ते घर दिता आ, उस परमात्मा वाहिगुरु नूं असीं भुल गए हैं, उस परमात्मा नूं छड्ड दिता है ते बंदे ते आस ला लई, जिस बंदे दा कोई भरोसा नहीं कि किहड़े वेले उहने मुकर जाना, किहड़े वेले उन्हें धोखा दे देना, किहड़े वेले उन्हें साथ छड्ड देना, कोई भी पता नहीं है। गुरु साहिब जी गुरबाणी विच बचन करते हैं, सुखमनी साहिब जी की बाणी दे विच सतगुरु जी कृपा करते हैं। सतगुरु जी ने कृपा की है, महाराज बचन करते हैं गुरबाणी दे विच कि भाई इस प्रकार कहते बंदे के उपर आस ना रख, मानुख की टेक बृथी सब जान। कहते मनुख का जिहड़ा आसरा है ना, ये तू व्यर्थ जानना कर, ਇਹਦਾ कोई लाभ नहीं। मानुख की टेक
ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ परमात्मा वाहिगुरु है। देवन को एक है भगवान। कहते जिस कै दिए रहे अगाए बहुर न तरसना लागे आए। कहते एक मनुख दे कोलों तू लवेंगा तो तेरे मन विच फिर आस बनी रवेगी कि मैं फलाने दिन फिर जाके उहदे कोलों कुछ लैके आवां, फलाना बंदा फिर मैनू कुछ दवे, फलाने बंदे दे वल उन्हां दे हत्थां वल वेखना पवेगा। कहते भाई परमात्मा ते आस रख। कहते बंदे ने जे तेनू कुछ दिता है ना, उन्हें 20 दे विच जाके दसना कि मैं फलाने बंदे नू आ वस्तु दिती है। कहते ते तेरे मन विच भी होवेगा कि मैं फलाने बंदे को आ वस्तु लियांदी है, मैं उहदे अधीनगी दे विच रहना आ। कहते परमात्मा वाहिगुरु दे कोलों मंग, परमात्मा दे कोलों लै। कहते जिस कै दिए रहे अगाए। परमात्मा जदों दिंदा आ ना, वो बंदे दे मन नू रजा दिंदा आ। बंदा रजिया पुजिया बन जाता है, उहदे अंदर भुख नहीं रह जाती, तृष्णा नहीं रह जाती। जिस कै दिए रहे अगाए बहुर न तृष्णा लागे आए। सतगुरु जी ने गुरबाणी विच बचन कीते ने, रे जी निलज लाज तोए नाही, हर तज कत काहू के जाही, जा को ठाकर ऊंचा होई। कहते सो जन पर घर जात ना सोही। महाराज कहते कि भाई तेनू कोई शर्म नहीं आउंदी, तू अपने प्यो नू अपने खसम नू छड्ड के कहते थावां थावां ते तू भटकदा फिर रहा है, थावां थावां ते तू जाके ते मंगदा फिर रहा है। कहते तेनू शर्म आउणी चाहिदी है। जाका ठाकुर ऊंचा होई। कहते जेदा मालक जेदा खसम जेदा वाहिगुरु इन्ना उच्चा आ, इन्ना वड्डा आ। कहते सो जन पर घर जात ना सोही। कहते अपने मालक नू अपने ठाकर नू छड्ड के कहते होर दूजे घरां दे विच मंगदा तू चंगा नहीं लगदा। कहते किसे मनुख दे कोलों, किसे देवी देवते दे कोलों, किसे पीर फकीर मड़ियां कबरां दे कोलों तू मंगदा चंगा नहीं लगदा। जे तेरा मालक इन्ना वड्डा आ, तेरा प्यो इन्ना वड्डा आ, तू अपने प्यो दे कोलों मंग, अपने पिता दे कोलों मंग, ते तू अपने पिता नू छड्ड के थां थां ते लभदा फिर रहा है। ते भगत फरीद जी कहंदे, फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे ना देह, जे तू एवै रखसी जियो शरीरो लेह। किन्ना वड्डा वचन कीता भगत फरीद जी ने। कहंदे हे परमात्मा, हे खुदा, जे मेरी जिंदगी दे विच किते ये समा लिखिया है ना कि पराए दे दर ते डिगना, पराए दे कोलों जाके मंगना, तेरा दर छड्ड के कहंदे मैनू ये समा नहीं चाहिदा, ये समा आउण तो पहला मेरी तू जिंद कढ लै, मैनू जिंदगी नहीं चाहिदी। मैं वेखना नहीं चाहुंदा कि मैं अपनी जिंदगी दे विच तेरा दर छड्ड के ते मैं फलाने किसी होर दर ते जाके डिगदा फिरां। कहंदे नहीं, फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे ना देह, जे तू एवै रखसी जियो शरीरो लेह। मेरी जिंद कढ लै। इस करके महाराज धन गुरु अर्जन देव जी बचन करते ने, हर सतगुरु जी कृपा करते ने महाराज कि भाई जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। कहते जगत दे जीवन, जगत नूं जीवन देन वाला परमात्मा वाहिगुरु पुरख वाहिगुरु, उन्नू छड्ड के कहते एक मनुख दी परास ना रख। दोए भाए विगुचीऐ गल पई सो जम की फास। ते सतगुरु जी कृपा करते ने भाई दोवां पासियां वल पैर रखना। दोए भाए विगुचीऐ, कहते एक पासे शराब भी पी लैनी है ते दूसरे पासे आन के गुरु घर मत्था भी टेक लेना कि मैं बख्शिया गया वां। एक बने पाप भी कर लेना आ ते दूजे पासे आन के गोलक दे विच 10 रुपये भी पा देने आ कि मैं बख्शिया जावां जिहड़ा पाप कीता आ। ये दोवां पासे पैर रखने, एक बने पाप भी करना आ ते दूजे पासे मैं कहना कि मैं बख्शिया भी जावां। एक पासे शराब पीनी है तो दूजे पासे आन के नहा धो के मत्था टेक लेना, मेरे अंदरों शराब निकल गई है। महाराज कहते दोवां पासियां वाल जिहड़े पैर रखने ने भाई, बंदा अपनी मंजिल ते नहीं पहुँचता। एक
एक कदम इधर नूं पुट्टना है, एक कदम इधर नूं पुट्टना है, तो बंदा मंजिल ते किवें पहुँचेगा। ये भाई मंजिल ते ये नहीं पहुँचया जा सकता। महाराज बतन करते ने, गल पई सो जम की फास, कहंदे गल दे विच जमां दी फाही पैनी है, गल दे विच जमां दी फाही पै जावेगी, भला नहीं होवेगा। जेहा बीजै सो लुणै, मथै जो लिखियास। सतगुरु जी कृपा करदे भाई, जो भी तू बीज रहा है ना, तेनू उही वढना पवेगा। अपने शरीर रूपी खेत दे विच कर्मा रूपी जेड़ा भी तू बीज पा रहा है ना, तेनू उही वढना पएगा। फरीदा लोड़ है दाख बिजोरियां, किकर बीजै जट। ते महाराज बचन करते ने, सतगुरु जी हंडा उन ताए दा पैदा लोड़ है पट। कहंदे भाई ये नहीं हो सकता कि तू पाप कर करके कि तू आखें बाद विच मैनू बिजौर देश दियां दाखां मिल जाण, नहीं हो सकता। जे कंडे बीजे ने ते किकरां ही मिलणगियां, कंडे ही मिलणगे। जो तू बीजे है ना उही मिलेगा। मत्थै जो लिखियास, कहंदे भाई उही तेरे मस्तक ते लिखिया जावेगा। ते जो तेरे मस्तक ते लिखिया गया है ना, उहदे हिसाब दे नाल तैनू दुख सुख मिलणगे। रैन विहाणी पछताणी, उठ चली गई निरास। ते रैन कहंदे ने रात, महाराज कहंदे जिहड़ी उमर रूपी रात है ना, ये लंघ गई है। उमर रूपी रात लंघ गई है, ते हुण मौत रूपी सूरज उदय होया है। रैन विहाणी पछताणी, उठ चली गई निरास। कहंदे हुण ते निराश हो के जिंद नूं जाना पएगा, क्योंकि ना तो परमात्मा का नाम जपिया है, ना सत संगत कीती है, ना भला कीता है। इस करके उम्र रूपी जड़ी रात वो लंघ गई है, उम्र पूरी हो गई है, तो मौत ने आन के डंका वजा दिता। हुण जिंद नूं निराश हो के उठ के जाना पवेगा। जिन को साधु भेटी है, सो दरगह होए खलास। सतगुरु जी कृपा करते ने भाई, जड़े गुरु दे प्यारे साधु जन है ना, उन्हां दे नाल मिलन करके, उन्हां दी संगत करके, कहंदे भाई दरगाह होए खलास। कहंदे परमात्मा दी दरगाह दे विच जगह मिल जांदी है। सारे जड़े नबेड़े मुक जांदे ने, ते सतगुरु जी ने कृपा कीती है। गुरबाणी दे विच संतन मोह को पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहा करेगो, जो फाटियो सगलो लेखा। कहंदे हुण की धर्म राजा भी करेगा। कहंदे जदों सारे लेखे जोखे सब पाड़ गए ने, दूर हो गए ने, ऐसी साधु महात्मा ने जड़ी नाम दी रास जड़ी है बख्श दिती है, दे दिती है। ते जिस करके परमात्मा वाहिगुरु दी दरगाह दे विच जगह मिल जाती है, गुरु दे प्यारे मुक्त हो जाते ने। कर किरपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। ते वेखो हुण गुरु साहब जी दे चरनां विच ये तरला मारिया कि वाहिगुरु कृपा कर, ये बख्शिश कर। ये परमात्मा दे घर दे विच कोई चतराई नहीं चलदी, कोई चलाकियां नहीं चलदियां। उत्थे तरला मारना पैंदा कि वाहिगुरु मेरे ते कृपा कर। कृपा केड़ी कर? तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शनां दी प्यास मेरे मन दे विच लगी रहे। तेरे दर्शनां दी तांग मेरे मन विच ये लगी रवे। क्योंकि प्यास दुनिया दे विच बड़े तरह दी है। किसी नूं पैसे दी प्यास है, किसी नूं निंदिया करन दी प्यास लगी है, कोई किसी किस्म दे नाल, कोई किसी किस्म दे नाल, हर एक नूं प्यास लगी है। पर जिहड़ी दर्शनां दी प्यास है साध संगत जी, गुरु दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ कि वाहिगुरु कृपा कर, ये जिहड़ी दर्शनां दी प्यास है मेरे मन दे विच लगी रहे। दर्शन देख जीवां गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। यह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेहरे। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। हे वाहिगुरु तेरे चरनां दे विच ही अरदास करनी बनदी है। क्यों? क्योंकि प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं,
तेरे तो बिना कोई तेरे बराबर कोई दूजा होर है ही नहीं है। तेरे बराबर कोई भी नहीं है जिहदे अगे असीं जाके तरला मारीए, जिहदे अगे हथ जोड़िए, जिहदे अगे झोली लैके जाइए, कोई भी नहीं है तेरे वर्गा। हे वाहिगुरू तू ही है। तेरे अगे अरदास करनी बनती है, तेरे अगे वाहिगुरू हथ जोड़ने बनते ने, तेरे अगे सीस झुकाउणा बनता है, क्योंकि तेरे वर्गा होर कोई भी नहीं है। भावें बड़ियां ने वाहिगुरू तेरे बराबर तेरे बराबरियां करनियां कीतियां ने तुहाडे बराबर, पर तुहाडे बराबर कोई भी पहुँच नहीं सकिया। किसी दे विच इन्नी समर्था ही नहीं है। चाहे कोई देवी देवता आ, कोई पीर फकीर है, कोई भी है, ये वाहिगुरू तेरे बराबर कोई भी पहुँच नहीं सकता। इस करके तेरे चरनां दे विच अरदास बेनती करनी बनती है। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। अखीरलियां पंक्तियां विच सतगुरु जी बचन करते ने। पहली पंक्ति विच भी बचन कीता सी आषाढ़ तपंदा तिस लगै, ते अखीरली पंक्ति विच महाराज ने बचन कीते आषाढ़ सुहंदा तिस लगै। पहला तपंदा सी, हुण सुहंदा आ। कहंदे भाई हाड़ दा महीना उन्हां दे लई शोभनीक है, उन्हां दे लई चंगा है। जिस मन हर चरण निवास, जिन्हां दे मन दे विच हिरदे दे विच परमात्मा वाहिगुरू दे चरण कमल वस गए ने, जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा वाहिगुरू दा वासा हो गया है, उन्हां दे लई ये शोभनीक है। हाड़ दा महीना उन्हां नूं तपदा नहीं नज़र आएगा, उन्हां दे हिरदे विच तपश पैदा नहीं होवेगी, जिहड़े परमात्मा दे चरनां विच जुड़ गए ने। ते साध संगत जी इस हाड़ दे महीने विच इन्नी ज़्यादा तपश पैंदी है, असीं ठंडे मिठे पानी बना के भी पींदे हैं, कूलर AC दे विच भी रहिंदे हैं, बड़े यतन करते हैं, पर साडे शरीर की तपश तो दूर हो जाती है, पर साडे हिरदे की तपश जिहड़ी दूर नहीं हुंदी, वो तपश दूर होनी है गुरु की बाणी दे नाल, परमात्मा वाहिगुरू दे नाम दे नाल। ते असी परमात्मा वाहिगुरू दे नाम दे नाल जुड़िए। सतगुरु जी कृपा करन कि असी परमात्मा वाहिगुरू दा नाम जपदियां होइयां, गुरु दे चरनां विच जुड़दियां होइयां ते साध संगत जी अपने जीवन नूं सफला कर सकीए। हाड़ दे महीने द्वारा सतगुरु जी ने कृपा कीती है, जिथे असीं अपने शरीर नूं शीतल बनाउने आ, अपने शरीर नूं सुख देने आ, इस तपश दे विच ते अपने हिरदे दे वल भी वेखीए किवें साडे हिरदे तप रहे ने, किवें साडे हिरदियां दे विच ईरखा दी अग, निंदिया दी अग, किवें किवें साडे हिरदे तप रहे ने। ते असीं अपने हिरदे नूं शीतल करिए, इनू ठंडक दईए गुरु दी बाणी दे नाल, परमात्मा वाहिगुरू दे नाम दे नाल। सो आप सारियां संगतां ने इन्नियां क बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां जी। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा, अगे तो सतगुरु जी समत बख्शिश करन। आओ हुण दो पंक्तियां पढ़ करके समाप्ति है जी। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।